नमस्कार, केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। एनएसयूआई बीदर ने आज हुबली में छात्रा नेहा हिरेमठ हत्या की निंदा करते हुए श्रद्धांजलि दी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बीदर के आजमीन के लिए हज कैंप का आयोजन जामिया मस्जिद में किया गया। फिर पे सीएम, अब कर्नाटका कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ शुरू किया चोंबा अभियान। हमारी बेटियों पर हमला हो रहा है, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना की। गारंटी योजनाओं पर कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। हुबली में छात्रा नेहा हिरेमठ हत्या की निंदा करते हुए आज बीदर शहर में कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे और एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद इरशाद खान ने एनएसयूआई के अन्य पदाधिकारियों ने बीदर तहसील के सम्मुख नेहा हिरेमठ को श्रद्धांजलि और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कहा कि इस हत्या की एनएसयूआई निंदा करता है और इस कांड में शामिल हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में कोई इस प्रकार का अपराध करने की कोशिश न करे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಈ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನ್ ಒಳಗಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ವಾಲ್ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಆ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ವೈರ್ ಇದೆ ಆ ವೈರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ UGC ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬ್ಯಾಗು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ದು UGC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಿ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಗಾಗಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಷರು, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತಂಬುದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ NSU ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ। बीदर शहर की जामिया मस्जिद में आज हज 2024 का हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन अंजुमन खादिम उल हुजाज और कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मानसूर खादरी की देखरेख में किया गया। यह कैंप आज सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला, जिसमें उलमामों ने हज के संबंध में जानकारी दी। बीदर जिले के सभी आजमीन ने इस कैंप में भाग लिया। इस मौके पर अंजुमन खादिम उल हुजाज के अध्यक्ष सैयद सागिर अहमद, मासा चीफ मोहम्मद गौस, कुरैशी सदस्य मोहम्मद शरीफ सहित अन्य सदस्य आदि मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कांग्रेस, जिसने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ अपने पे सीएम अभियान के साथ एक कहानी तैयार की, अब आगामी लोकसभा में केंद्र के खिलाफ एक नया चोंबा पोता अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर दौरे के मौके पर विधायक रिजवान अरशद और एआईसीसी सचिव अभिषेक दत्त सहित कांग्रेस नेताओं ने एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में महाकारी सर्कल पर प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा और बेंगलुरु उत्तर लोकसभा उम्मीदवार प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा ने अलग अलग इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया। जब कर्नाटक के लोगों और किसानों ने सूखा राहत मांगी तो भाजपा सरकार ने एक खाली चोंबा दिया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया, 15वें वित्त आयोग में जब हमने राज्य का बकाया हिस्सा मांगा तो केंद्र ने हमें चोंबा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऊपरी भद्रा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 5,300 करोड़ रुपए का बजट या वादा जारी नहीं किया गया है। राज्य को केंद्र को कर के रूप में भुगतान किए गए 100 रुपए के मुकाबले अपने हिस्से के रूप में केवल 13 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बेंगलुरु में परिधीय रिंग रोड को आवश्यक धन नहीं मिला। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो इस बार कर्नाटक और देश के लोग चुनाव में बीजेपी को एक खाली चोंबा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना की, जबकि परोक्ष रूप से एमसीए की छात्रा और कांग्रेस नेता की बेटी नेहा हिरेमठ की हत्या का जिक्र किया। यहां पैलेस ग्राउंड में एक रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने लोगों से सावधान रहने, उच्चतम अलर्ट मोड पर रहने की भी अपील की। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, यहां हमारी बेटियां पर हमला किया जा रहा है, बाजारों में बम विस्फोट किए गए, भजन और कीर्तन सुनने के लिए हमले किए जाते हैं, ये नियमित घटनाएं नहीं है। इस पृष्ठभूमि में मैं बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों से अपील करता हूं, कांग्रेस की ओर से उच्चतम अलर्ट मोड पर रहने के लिए। पीएम मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेंगलुरु शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा ने एक खूबसूरत शहर बनाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि तकनीकी शहर एक टैंकर शहर बनकर रह गया। उन्होंने शहर को जल माफिया के हवाले कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सिर्फ केंद्र सरकार की परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक को जल्द ही बुलेट ट्रेन मिलेगी।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी शनिवार को चुनाव आयोग से संपर्क कर सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी योजनाओं पर उनके कथित बयान के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कांग्रेस ने कहा कि 17 अप्रैल को मंड्या और चिकबल्लापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए विजेंद्र ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 5 गारंटी, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा निधि शक्ति योजना और अन्य भाग्य पर स्पष्ट रूप से हमला किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 5 गारंटियों के कारण राज्य सरकार दिवालिया हो गई है और यदि मतदाता कर्नाटक में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो भाजपा सांसद चुनाव के बाद 5 गारंटियों को बंद कर देगी। केपीसीसी ने पत्र में आरोप लगाया कि उनका बयान है कि भाजपा सांसद चुनाव के बाद कर्नाटक में सत्ता में आएगी। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में रिश्वतखोरी में कथित संलिप्तता के लिए भाजपा के मैसूरू कोडगु लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वड़ियर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। शनिवार को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में केपीसीसी ने आरोप लगाया कि वड़ियर ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो एमसीसी का घोर उल्लंघन करते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वड़ियर ने अपने चुनावी अभियान के लिए समर्थन और प्रभाव मांगने के स्पष्ट उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई प्रभावशाली हस्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की है। इस बैठक के दौरान जो गुप्त रूप से आयोजित की गई थी, वड़ियर ने इस प्रभावशाली लोगों को प्रस्ताव देकर प्रभावित करने के गंभीर प्रयास किए। व्यक्तिगत नोटबुक, पेन, चॉकलेट, साड़ी और मिठाइयां सहित भौतिकवादी प्रलोभन यह आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि कर्नाटक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलबत समेत 2 लोगों को शनिवार को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उन्होंने मेखरी सर्कल के पास उस मार्ग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलने वाला था। उन्होंने कहा, यह किसी भी तरह की सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं है। उन्होंने एक
उपलेन पर एक खाली चोंगो, एक छोटा गोला पानी का कंटेनर पकड़कर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, जो उस मार्ग के पास था जहां यहां पैलेस मैदान में अभियान रैली के बाद मोदी का काफिला जाने वाला था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने 2 लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया है, इसलिए पीएम का काफिला पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक गली में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। हुबली कॉलेज छात्रा हत्याकांड के आरोपी फयाज की मां मुमताज ने स्वीकार किया कि उनके बेटे ने जो किया वह गलत था और उसे देश के कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। हालांकि उसने दावा किया कि उसका बेटा और पीड़िता नेहा प्यार में थे। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुमताज ने खुलासा किया कि उनके बेटे और नेहा के बीच रिश्ता कैसे विकसित हुआ। मुमताज ने कहा, जब फयाज ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में यूनिवर्सिटी ब्लू खिताब जीता तो नेहा ने उनका फोन नंबर लिया और उनसे बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि फयाज ने उन्हें कुछ महीने पहले इस बारे में बताया था और उन्होंने उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी, यह कहते हुए कि वह अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता के दर्द और दुख को समझ सकती है। उन्होंने कहा, मैं नेहा के माता पिता सहित सभी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें माफ कर दे। मैं उनकी पीड़ा का एहसास कर सकती हूँ और मैं भी उतनी ही चिंतित हूँ। इस बीच नेहा की मां ने कहा कि उनकी बेटी फयाज से प्यार नहीं करती थी, वे सिर्फ सहपाठी थे, लेकिन फयाज नेहा के पीछे पड़ा था और उसने कई बार इसकी शिकायत भी की थी। नेहा की मां ने कहा, हमने उससे कहा कि इसे गंभीरता से न ले। मुमताज के माफी मांगने पर प्रतिक्रिया देते हुए नेहा की मां ने कहा, इससे हमें अपनी बेटी वापस पाने में मदद नहीं मिलेगी। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने नेहा के माता पिता से मुलाकात की और उन्हें मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया। इस कृत्य की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि घटना को संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित करना। सार्वजनिक नलों में एरेटर की स्थापना को अनिवार्य करने के बेंगलुरु जल बोर्ड के निर्देश के बाद इसने शहर भर में लगभग 5 लाख एरेटर की सफल स्थापना की घोषणा की। रिपोर्ट के अनुसार ये प्रतिष्ठान सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों सहित विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, जिनका उद्देश्य जल संरक्षण के प्रयास है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड PWSSB ने शहर भर में एरेटर की स्थापना के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित की है। सिविक एजेंसी के चेयरमैन वी राम प्रसाद मनोहर ने इस मामले पर पत्रकारों से बात की और कहा, एरेटर लगाने से हर रोज 30% पानी बचाया जा सकता है। बोर्ड ने गैर जरूरी कामों के लिए पीने का पानी इस्तेमाल करने पर शहर के 450 लोगों पर जुर्माना लगाया है। BWSSB ऐसे उल्लंघनों के लिए ₹5,000 का जुर्माना लगाता है। पिछले 15 दिनों में बोर्ड ने 15 झीलों का उपचारित पानी से भर दिया है और 1 वर्ष के समय में 200 झीलों को उपचारित पानी से भरने का लक्ष्य रखा है। इससे इन झीलों के आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। NSUI बीदर ने आज हुबली में छात्रा नेहा हीरेमठ हत्या की निंदा करते हुए श्रद्धांजलि दी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बीदर के आजमीन के लिए हज कैंप का आयोजन जामिया मस्जिद में किया गया। फिर पे सीएम, अब कर्नाटका कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ शुरू किया चोंगा अभियान। हमारी बेटियों पर हमला हो रहा है, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना की। गारंटी योजनाओं पर कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।